Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. This video lecture will be beneficial for students who are preparing for CSIR NET, GATE, DBT, MSc entrance test or any other competition exams in life sciences. This is part 2 of enzymology. Those who have not seen part 1, सबसे पहले part 1 देखिए फिर part 2 पे आइए. इसमें मैं आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी एंजाइम्स के रिलेटेड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर CSIR NET प्रेपरेशन. इससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. In this video, we will discuss about mode of action of enzymes. In the end of this video, we will also discuss some previous year questions related to this topic. As discussed in part 1 of enzyme, that enzymes only speed up reaction, they can't shift equilibrium state of reaction, as well as they don't change free energy state of substrate and product. This is very important point. So this is the basic overview of action of enzymes. First of all, substrate molecules binds to the active site of enzyme. This is the active site of enzyme. So and form enzyme substrate complex, which then converts to enzyme product complex. After the product formation, products will be removed from active site of enzyme and free enzyme will be recovered for binding to another substrate. So this is how the whole process occurs. Next are the models for binding between substrate and enzyme. There are two models. First is lock and key model and another one is induced fit model. So lock and key model was proposed by Fischer. According to this model, binding site of enzyme and substrate are complementary to each other. That means there is lock and key arrangement like enzyme in enzyme and substrate. सो एज शोन इन डायग्राम एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ही देखो ऐसी है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए. देयर विल बी नो चेंजेस इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फिट. पहले से ही उनका लॉक एंड की अरेंजमेंट है. ठीक, फाइन. दिस इज व्हाट लॉक एंड की मॉडल सजेस्ट. Next is induced fit model. According to this model, when substrate binds to active site, then what happens? It induces a conformational changes in the active site of enzyme, so that कि substrate जो है वो properly fit हो सके enzyme की active site पे. देखो जैसे कि डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि substrate molecule, so this is the active site. देखो एक्टिव साइट की शेप पहले कैसी है. जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स, तो प्रोडक्ट्स बनेंगे और निकल जाएंगे. सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इन कंपैरिजन टू लॉक एंड की मॉडल. नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स. नाउ वी नो कि एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. एंजाइम्स कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक हाई एनर्जी स्टेट आती है. देखो इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है. व्हेन सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट देन देयर इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट, एंड उस हाई एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट. दैट मीन्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है. सो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, एक्टिवेशन एनर्जी. So what is activation energy? It is energy required for reaction to begin. Now we know that substrate has to go through transition state for product conversion. But why substrate can't convert to product without transition state? Why transition state is so important in this? क्योंकि जब substrate product में convert होंगे तो कुछ bonds break होंगे और कुछ bonds बनेंगे, right? So to break old bonds and form new bonds, some amount of energy is required. That's why transition state forms. Fine. So by this energy substrates break existing bonds and form new bonds for product formation. चलो अब हमें ये पता है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बट एंजाइम का रोल कहाँ है इसमें. एंजाइम का रोल क्या है इसमें, एंजाइम कैसे स्पीड अप करेगा रिएक्शन को. चलो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी. ये वाला जो एनर्जी डायग्राम है इसको मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, मान लो दिस गर्ल wants to eat fish.
Okay, for this she has to cross this large barrier. She has to cross this large barrier. बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो क्रॉस करने में उसको बहुत टाइम लगेगा. उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड की हेल्प ली. उसका फ्रेंड आया. वो कैसे उसकी हेल्प करेगा, उसने अपनी एनर्जी रिलीज़ की, उसके फ्रेंड ने अपनी एनर्जी रिलीज़ की और उस बैरियर को छोटा कर दिया. देखो ये बैरियर छोटा हो गया. नाउ गर्ल को फिश तक पहुंचने के लिए कम एनर्जी लगेगी. ओके, सेम एज दैट विद एंजाइम्स, बॉय एंजाइम की तरह एक्ट करेगा. गर्ल को बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए थी, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. तो बॉय ने क्या किया, कैसे उसकी हेल्प की, बॉय ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया. फाइन. सो एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. अब देखो कि ऐसा क्या होता है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. जैसे बॉय ने अपनी एनर्जी रिलीज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया. सो सेम वे व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम, सो जब वो इंटरेक्ट करता है सबस्ट्रेट एंजाइम से बाय वीक इंटरेक्शंस लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है यही होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है. सो substrate binds to active site of enzyme by multiple weak non-covalent interactions. The free energy is released in the formation of large number of weak interactions between enzyme and substrate, termed as binding energy. That binding energy helps in substrate molecules to reach the transition state earlier and thus lowering the activation energy. नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट इज़ अनस्टेबल. देखो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है बिकॉज हाई एनर्जी स्टेट है. एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डोंट स्टे हेयर लॉन्ग, दे क्विकली प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स. नाउ अब हम उसी एनर्जी डायग्राम पे फिर से आएंगे जो स्किप हो गया था पीछे. सो ये वाला है जो दिस इज़ विदाउट एंजाइम एंड दिस इज़ विद एंजाइम. तो एंजाइम ऐड होने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई. इसमें एक पॉइंट को हमेशा माइंड में रखना है कि फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट दैट विल नॉट चेंज, दैट विल नेवर चेंज. देखो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की अपनी अपनी फ्री एनर्जी होती है जो बिल्कुल सेम रहेगी, एंजाइम के ऐड होने से चेंज नहीं होगी. चेंज होगा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी. फाइन. Now let's discuss some previous year questions related to this topic. So first is, which one of the following statement is true? Enzyme catalysis of chemical reaction. So first option is increases the forward and reverse reaction rate. देखो this is the absolutely correct option. एंजाइम जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट को तो इंक्रीज़ करता ही है. ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट. अनदर इज़ डिक्रीजेस फ्री एनर्जी. सो दिस इज़ रॉन्ग. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनर्जी, फ्री एनर्जी जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होगी. फ्री एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी एंजाइम के ऐड होने से. सो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन. इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ओके, दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को वो इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करता है एंजाइम. नेक्स्ट इज, so this is also wrong. Next is decreases the entropy of reaction. No, it is also wrong. एनर्जी हो चाहे एंट्रोपी हो, एंजाइम जो है वो कभी भी एनर्जी और एंट्रोपी से छेड़खानी नहीं करता. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉजेज द. फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये रॉन्ग हो गया. फ्री एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, ना ही सबस्ट्रेट की, ना ही प्रोडक्ट की, ना ही पूरी रिएक्शन की. ठीक है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, नो, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट इज एंजाइम्स हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ रिएक्शन बाय. कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है एंजाइम्स? बाय फर्स्ट इज कोवेलेंट इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट. कोवेलेंट इंटरेक्शन कभी नहीं होती क्योंकि वीक इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज बाइंडिंग ओनली विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स.
ये तो होता ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ एंजाइम जो है वो बाइंड करता है. सो दिस इज़ रॉन्ग. चेंजिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम, नो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कभी भी चेंज नहीं होगा. सो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शंस विद द सबस्ट्रेट. येस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो, जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमने पहले स्टेटमेंट्स नहीं रीड करनी होती, सबसे पहले हमने ये रीड करना होता है कि क्या पूछा है. ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछा है उन्होंने. पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है. ठीक है, तो इसको हमने पहले देख लेना है कि करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. इनकरेक्ट पूछा है तो अब हम स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज एंजाइम एनहांस रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 2 to 10. अब देखो, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन रेट को 2 to 10 फैक्टर से एनहांस नहीं करते. वो किस फैक्टर से करते हैं? मिलियंस और मोर देन मिलियन. ओके, एंजाइम्स एनहांस रिएक्शन रेट बाय मिलियन और मोर देन मिलियन. सो ए करेक्ट ऑप्शन है. दैट मीन्स ए वाले ऑप्शन आपके सॉरी, ए जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है. दैट मीन्स ये वाला तो आपका आ ही नहीं सकता, ये वाला एलिमिनेट हो गया. आंसर इस ए, सी या डी में से होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोअर्ड बाय एंजाइम. अब देखो, बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, तो दैट मीन्स जिसमें बी है वो तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. बी पहले से ही एलिमिनेट हुआ है. नेक्स्ट जो आपका ए है वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट सी क्या है? द इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है, तो सी भी आंसर में नहीं आ सकता. ये वाला भी एलिमिनेट हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ए, डी. ऑप्शन इज डी. इसको भी हम एक बार रीड कर लेंगे. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डजेंट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. वैसे फैक्टर्स को हम एक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली अफेक्ट करेगी रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को, क्योंकि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे तो रेट जो है आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस का वो भी साथ साथ इंक्रीज होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डी. नेक्स्ट इज enzyme accelerate a reaction by which one of the following strategies? First is decreasing energy required to form transition state. Yes, transition state के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको तो डिक्रीज करता ही है एंजाइम. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी एक बारी हम रीड कर लेंगे. इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, नो, काइनेटिक एनर्जी को, एंट्रोपी को कभी भी चेंज नहीं करेगा एंजाइम. सो सेकेंड वन इज रॉन्ग ऑप्शन. थर्ड इज इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. वो तो हमने डायग्राम में देखा ही था. सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में फ्री एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम रहता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम. टर्न ओवर नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं, गेट में भी और CSIR नेट के पार्ट सी में भी. सो इसको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि टर्न ओवर नंबर को एंजाइम को इंक्रीज़ नहीं होते, एंजाइम्स इंक्रीज़ नहीं करते टर्न ओवर नंबर को. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स. अगर और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. Thank you so much.